اور دیگر کمیٹی کے ممبران نے آئندہ اسمبلی انتخابات کو لے کر پارٹی کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس لیڈر طارق حمید کرا نے کہا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات کو لے کر میٹنگ میں تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جن جماعتوں کو لوک سبھا انتخابات میں نکارا گیا انہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے اور اس معاملے پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس کو لے کے ہمارا ڈسکشن اس وقت ہے کہ ہم پیپلز فرینڈلی گارنٹیز کون کون سی دے سکتے ہیں، لیکن وہی گارنٹیز ہم دیں گے جو ڈویبل ہوں گی۔ یہ کچھ لوگ جو انڈویبل چیزوں کو سامنے لاتے ہیں پاپولیرٹی کے حاصل کرنے کے لیے، اس طریقے کا کوئی ویسا نہیں ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے ڈیلیبریٹ یہ بھی کیا کہ اس وقت کا ماحول دیکھتے ہوئے کانگریس کی ایک جو فیل گڈ فیکٹر ہے تھرو آؤٹ دا اسٹیٹ، ایک فیل گڈ فیکٹر ہے جس کا ایکچولی اگر دیکھا جائے تو سہرا راہل گاندھی جی پہ جاتا ہے، جو ان کی یاترا رہی کنیا کماری سے کشمیر تک، اس سے لوگوں کے ایک کنیکٹ جو بنا ہے وہ ڈائریکٹ راہل گاندھی جی کے ساتھ ایک بنا ہے، ان کی پرسنالٹی کے ساتھ بنا ہے، ان کے اس جذبے کے ساتھ بنا ہے، خاص طور سے جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ اپنے ایک جو کنیکٹ کیا، کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ جو ایک کنیکٹ کیا۔ تو یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں، اسپیشلی ان پولیٹیکل پارٹیز میں جن کو پارلیمنٹ کے الیکشن میں لوگوں نے نکار دیا، تو وہ لوگ دائیں بائیں کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کانگریس پارٹی کو بھی اپروچ کیا ہے، تو ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بھی ڈیلیبریٹ کیا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ وہیں انہوں نے جموں میں بڑھتے حملوں کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کے دعوے کھوکھلے ثابت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مرکز سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اٹس اے گریٹ میٹر آف کنسرن اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ اینڈ اٹ اسپیکس the tall claims of the government or tall claims of the LG's administration have fallen apart. آج ہم یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو باتیں ہم پچھلے 10 سال سے کہتے آ رہے تھے کہ یہ جنگوئزم کی پالیٹکس نہیں چلے گی۔ جنگوئزم آپ نے بہت کیا، ایکسپیریمنٹیشن آپ نے بہت کیے، لیکن تب بھی آپ ان سب چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائے جس کو لے کے پچھلی سرکاریں بڑی کوشش کر رہی تھیں، اور آپ نے بلکہ ماحول کو فردر ویشیٹ کر دیا۔ جموں بالکل فری آف ملیٹنسی تھا، آپ کشمیر کو ملیٹنسی کے بارے میں بہت ہی غلط طریقے کی ایک انفارمیشنز لوگوں کو دے رہے تھے کنٹری میں، لیکن وہ آپ کنٹرول نہیں کر پائے، اور جموں آپ کا جو ہے اس وقت ایک اٹس آن اے بوائل۔ So this is for the government to revisit their policy of dealing militancy and dealing the people of Jammu and Kashmir and dealing the democratic system. میرے خیال میں ان کو ہولسٹک طریقے سے ایک ریوزٹ کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کو۔ نیبرنگ کنٹری بھی بیٹھ نہیں رہی ہے۔ دیکھیے نیبرنگ کنٹریز کو آپ جس وقت آپ فرٹائل گراؤنڈ پرووائڈ کریں، تو نیبرنگ کنٹریز کا تو جو بھی رہا ہے ہماری کنٹری کے ساتھ میں جو ریلیشنز رہے ہیں، کھٹے میٹھے کڑوے، کبھی اچھے کبھی برے، وائی آر وی پرووائڈنگ دیم the grazing ground for all these things؟ میرے خیال میں ہمیں ہولسٹک طریقے۔ ادھر کل دلی میں وزیر اعظم مودی کے سربراہی میں نیتی آیوگ کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں ویژن 2047 پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کے لیے غربت کو مکمل طور پر ختم کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ تاہم اس سرکار کے کلیدی اتحادی نتیش کمار نے اس اجلاس میں حصہ نہیں لیا۔ ان کے بجائے 2 نائب وزرائے اعلیٰ سمراٹ چودھری اور وجے کمار سنہا نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ نتیش کمار کی بند کر دیا گیا۔ ممتا نے کہا کہ انہیں بات کرنے کے لیے صرف 5 منٹ دیے گئے۔
বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন। আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। নো পার্টি, নো গভর্নমেন্ট, and you only me on behalf of opposition, only I am there, and you আপনারা মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন। আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে उधर इल्जामात पर रद्दअमल देते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ममता बनर्जी के दावों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि इजलास में मौजूद सभी वज़राए आला को बराबर वक्त दिया गया था। दूसरी तरफ से मरकजी बजट में नाइंसाफ़ी के इल्जामात लगाने के बाद इंडिया इत्तेहाद के सभी वज़राए आला ने इस मीटिंग में एहतजाजन शिरकत नहीं की। Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective Chief Ministers speaking. So did we watch so many Chief Ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. Every Chief Minister was given their due time to speak. वादी कश्मीर में कई माह से शदीद गर्मी और खुश्क मौसम से परेशान सैकड़ों की तादाद में लोग आज सुबह चाडूरा से चार शरीफ ज़ियारत नंगे पाँव पहुँचे और वहाँ वादी में बारिशों के लिए दुआएं मांगी गई। मुकामी लोगों के मुताबिक माजी में भी खुश्क मौसम हुआ तो लोग बारिशों के लिए चार शरीफ पहुँचते थे। अल्लाह ताला सुन इम्तिहान, अल्लाह ताला त्रेस आजमाइश अंदर यथ पतिम 5 या 6 बारान यस पथ हजरत अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह बचुस नागनुक मकदम खनन रोजन वोल बुजुर्ग तमिस नाव अमयोत अक वरी गई कहत सारी नागामस अंदर रूद पे कहीं बारान पे कहीं तम कोर तकिया नागाम तकिया तम कोर तक ऐलान बोली सा चार खसो चार खस खतर रूद खलक तैयार सह आव कुन जोन यह फुरबाबन तोनमुत यह रिवायत सह आव कुन जोन पे नागाम पे तमिस दस्तार दी तम त्रो पन दस्तार मुबारक अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी सदिस दरबारस मज और सुबह ये गर वोत तम तून जखर जमीन अल्लाह ताला सदन अपुज वन तम तून जखर जमीन तिमन पे रूद तम नबर रूद पेमुत ये योर वोत तथ बने सो मकई तूत फसल बनो तक बस कि जनाब हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह दरबार की। उधर वादी के मारूफ कश्मीरी शायर, कलमकार, अदीब और माहौलियाती कारकुन ज़रीफ अहमद ज़रीफ ने वादी में जारी खुश्क मौसम पर बात करते हुए कहा कि घने जंगलात, आबी ज़खायर और सरसब्ज़ माहौल के बाइस माजी में वक्त पर बारिशों और बर्फबारी से यहाँ का दर्जा हरारत मामूल पर रहता था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बदल गया है, जिसके बाइस यहाँ आज आब व हवा में तब्दीली देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम है, ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम इस वक्त है, ये सिर्फ हमको ही नहीं है, सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है। सिर्फ कश्मीर में फ़र्क ये थी, यहाँ हमारे जंगलात थे, वाटर बॉडीज़ थी, सरसब्ज़ माहौल था, इस लिहाज से यहाँ बारिशें और बर्फ़ उतनी पड़ती थी जो बराबर साल भर उसका पानी हमें मिलता था। जंगलात के इन मतलब इलाकों में बर्फ़ जमकर रहती थी और जितना तमाज़त हरारत बढ़ जाता था दिन का तो उतना पानी निकल आता था उन जंगलातों से, जंगलों से। इस लिहाज से अब बर्फ़ उतनी पड़ती नहीं है, गिरती नहीं है
और माहौल जितना हीट अप हुआ है अब, ये तो इस लिहाज से भी अब गर्मी की वजह से इस वक्त ये सारा कुछ माहौल बिगड़ चुका है। हमारे बचपन में जब एक इनफरादी हैसियत से भी इंसान तौबे इस्तगफार करता था, इज्तिमाई हैसियत। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले तिजारती वक्फा। Stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च। नाज़रीन, श्रीनगर में आज मोल मोज फाउंडेशन ने वर्ल्ड डे फॉर ग्रैंड पेरेंट्स मनाया। तकरीब में कई शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद अपने बुजुर्गों को ये मैसेज देना कि जैसे उनकी कद्र पहले की जाती थी, आज भी उनको वही कद्र है। बेसिकली जो इवेंट है, ये तो आज का जो इवेंट है इसको हम कहते हैं वर्ल्ड डे फॉर ग्रैंड पेरेंट्स। लेकिन हमारा मकसद बेसिकली अपने बुज़ुर्गों के साथ मिलना, इनको एक ऐसा एहसास दिलाना कि आप अभी भी हमारे लिए वही वर्थ रखते हो, वही रिस्पेक्ट हम आपको देते हैं जो हम पहले देते थे। तो ये एक बहाना है इनसे मिलने का, और पूरे हमारी जो सोसाइटी में जो बुज़ुर्ग हैं उनको ये यहाँ से मैसेज देने का कि यू स्टिल आर वी वर्थ यू एंड वी स्टिल रेस्पेक्ट यू। आपकी जो ज़रूरत हमारी ज़िंदगियों में वो वैसी है जैसे पहले थी। देखिए, जैसे आपने कहा तो इसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एल्डर अब्यूज़। तो जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, उनको नेगलेक्ट करके उनके साथ ख़ातिर राबिता करते हैं, काफ़ी सारे केसेस मैंने अपनी प्रैक्टिस में 12 साल से देखते आ रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में जहाँ पे कि क्लोजली नीड सोसाइटी है, एक एल्डर्स का रेस्पेक्ट पहले ही हमें समझाया जाता है बचपन से। साबिक बीडीसी चेयरमैन और पहलगाम के भाजपा असेंबली इंचार्ज हाजी अब्दुल मजीद ने पार्टी के बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। अब्दुल मजीद की जानिब से जारी एक बयान में उन्होंने फैसले के पीछे सेहत की वजूहात को बुनियादी वजह करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी और हम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी सेहत अब उन्हें सियासत में अपना काम जारी रखने की इजाज़त नहीं देती। मैं हाजी अब्दुल मजीद भट्ट एक्स बीडीसी ब्लॉक खोबरीपोरा 2019 बीजेपी की टिकट पर बीडीसी मुंतखब हुआ था और मैंने अपने फराइज खुश अस्लूबी से अंजाम दिए। जो कुछ मेरे दायरे इख्तियार में था और अपने फंड ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए आते थे, बड़ी मेहनत और ईमानदारी से सर्व किए और अवाम की हर उमंग को पूरा करने की कोशिश की। इसके अलावा पार्टी का मंशूर ब्लॉक के हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश की। खासकर विकसित भारत के वक्त पार्टी की साख को मजबूत करने की कोशिश की। 9 जनवरी 2024 को मेरी मुद्दत खत्म हुई
और पार्टी ने मुझे इंचार्ज कांग्रेस प्रेसिडेंट पहलगाम की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन चंद महीनों से मेरा सेहत नासाज हो रहा है क्योंकि मेरी उम्र 65 साल से तजावुज कर गई है, लिहाजा मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी में चलने फिरने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं अपने ओहदे से एनसी के नायब सदर कश्मीर सूबा और लालचौक असेंबली नशस्त के इंचार्ज एहसान परदेसी ने आज एसडी कॉलोनी बटमालू का दौरा करके वहाँ लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने इस दौरान मीडिया को बताया कि मुकामी बाशिंदे कई मसाइल से दो चार हैं और उन्होंने पहले ही कई मसाइल को हुक्काम के सामने पेश किया है। एसडी कॉलोनी में हमारा आज पहला विजिट नहीं है। जब से मैंने ऑफिशियली एज इंचार्ज लाल चौक की जिम्मेदारी संभाली थी, उसके बाद से तकरीबन मुझे लगता है कि हर महीने में 3-4 बार हमारा एसडी कॉलोनी जो बटमालू एरिया में जो आना जाना लगा रहता है। बदकिस्मती की बात यह है कि बटमालू जितना शहर के नज़दीक है और उस हिसाब से जितनी डेवलपमेंट बटमालू एसडी कॉलोनी के अंदर होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। यहाँ पे ग्रीवेंसेस की कमी नहीं है, पानी का मसला है, यहाँ पे रोड्स का मसला है। आप देखिए, मैंने डीसी साहब से ऑलरेडी ये बात महीना पहले उनको राइटिंग दिया है कि ये जो हमारा मेन रोड आता है यहाँ से चौक से लेके गुजर तक, इसको मैग्नीमाइज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मतलब शहर के बिल्कुल मैं कहता हूँ शहर के नज़दीक ये शहर ही है। एक इतनी प्रोमिनेंट प्लेस होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जिस लेवल की डेवलपमेंट एसडी कॉलोनी बटमालू में होनी चाहिए नहीं है। लेकिन मैंने इन लोगों से वादा किया है कि इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह इनके जितने भी जेन्युइन जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे वो मैं इनको हल करके दूंगा, उसके लिए मैं वादा बंद हूँ इंशाल्लाह। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। Of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। FM यूथ फोरम जम्मू कश्मीर के अरकान ने आज हुमामा बडगाम में अपने सदर दफ्तर पर एक इजलास मुनक्किद किया, जहां उन्होंने कई मसाइल पर बातचीत की। इस इजलास में तंजीम से जुड़े दर्जनों अरकान ने शिरकत की और इसके साथ साथ कई नौजवानों ने अवामी खिदमात के जज्बे के तहत तंजीम में आज शिरकत भी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए इमरान ने मीटिंग के हवाले से बात करते हुए कहा, क्या मकसद तुंद क्या काम कर मकसद ये कि वुचान गामस मज अगर क्या सह कर पूरे तिक मुख्तार सूब ने अम कथ
صدیو ست انتظار مگر آز گو یہ سون کھاپور ڈسٹرک بڈگامس میلیو آز تیُتھ اخ لیڈر یس یوتھچ درد چھ سمجھان ٹھیک اور اس امے چیز خاطر در در کے ٹھوکرے کھاتے تھے ہم کیونکہ انہوں نے جو پہلا انیشیٹو لیا وہ انہوں نے یوتھ کے ساتھ لیا کیونکہ ایف ایم یوتھ جو یوتھ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. آج ہمارے گاؤں میں لگ بھگ 50 سے 60 کے یوتھ قریب اس ایف ایم یوتھ فورم میں جڑ گئے ہیں. کم چیز کرنا تو انسپائر تو کرو ان سے جوائن مختار صاحب سے انسپائر گئے امی چیز کن کہ یہ جو درد دل رکھتا ہے یوتھ کے لیے آج گئی تمی چیز خطر انسپائر بیچ غریبن خطر ہمدردی تمہ خطر تہ گئی انسپائر ات یوتھ فرم مز. میون ناو فاروق احمد شیخ آر او گوگو ڈسٹرک بڈگام تحصیل بڈگام. کر گور تھی جوائن ایف ایم یوتھ فورم کم مقصد تحت اس کور امہ مقصد ساتھ عوام کام کریں غریبن ہز خدمت کریں کی بیمار آسن تہذ کام کریں منڈ آسن مشین آسن تہذ کام کریں تمن واتن تمن کی ضرورت سون کام تہد ہیلپ کر. کوتا ٹائم گو تہ گئی لگ بھگ ؤری گو برابر ات سۭتۍ پکان ؤری کتھن آسو تۄہہِ آز تام یہ مدد کٔرمٕژ تامتھ چھِ 17 شیٚتھ تہٕ کینٛہہ یم راشن کارڈ چھِ راشن کارڈ اَسہِ چھِ سورُے ییٚتہِ فایل بناوُن 17 شیٚتھ کینٛہہ راشن. ناظرین یہ تھا 8 بجے کا خبر نامہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دی اجازت اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو. اللہ حافظ.